Okay, good morning everybody. Good morning to all my dear student of class 11 science. So welcome back, and this is the last lecture of the year 2020, है ना? 2020 के आखिरी लेक्चर में आपका स्वागत है. अब जो भी लेक्चर होगा वो 21 में होगा, 20 में नहीं. Okay, so again we are here to discuss some more interesting topic of this ionic equilibrium chapter. If you remember that till the last class we discussed how to calculate the pH. Okay. If you discuss today, I am going to take the third lecture on the pH. So in the first of the lecture, what we discussed simply the formula and find out the pH of any acid, H plus ion. Yesterday we discussed if any basic sample will come, then how we have to find out the pH. So we have one formula, ionic product of the water, and based on that we have to find the H plus ion concentration, and based on that we are able to find out. Now, if you remember that in our last lecture yesterday, one more very good question we discussed, that find out the pH of 10 to the power minus 8 MHCl. तो क्या वहां सीखा? इसका मतलब वहां पे कुछ बेसिक इंप्योरिटी है, तो 10 to the power minus 7 ऐड किया, and based on that we find. Now today some more interesting question of the pH we will discuss that. क्या पढ़ना है देखो, if you remember that my dear, one of the formula you discussed dissociation constant of an acid, and what was the formula? C alpha square upon 1 minus alpha. Okay, what was the Ka over there? That was the dissociation constant of an acid. Have you remember that? You पढ़ा है dissociation constant of an acid. ठीक है ना? So K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. This formula already people had discussed. ये भी formula आपने पढ़ा. Anybody can text in this formula what is C and what is alpha? Anybody can text me in this formula what is the C and what is alpha? Formula आपका पढ़ा हुआ है, तो बताएगा what is the C over here and what is the alpha over here? What does it mean? यहाँ पे C और अल्फा का क्या मतलब है? कोई बताएगा? Anybody? No one. The meaning of the C is concentration over here, and what is the meaning of the alpha? Yes, very good. So Nidhi gave me the answer. Very good, Nidhi. Only Nidhi gave me the answer, and alpha is the degree of dissociation. Okay, this is the degree of dissociation. है ना? ये C हो गया और अल्फा हो गया. So now what you can say that K भी एक फॉर्मूला हुआ, तो अभी क्या होगा? Suppose anybody asks to you what do you mean by the pKa, ऐसा भी आ सकता है. ठीक, अभी फॉर्मूला जब पढ़ा था pH का तो क्या था? माइनस log H plus ion concentration. Based on that, if anybody can also ask to you कि find out the pK. ये pK मूवी से रिलेट मत कर देना भाई, है ना? pK मूवी नहीं है ये. Anybody can ask to you कि find out what is the pKa, है ना? तो जैसे pH है, तो what is the full form of the pH? Power of hydrogen. So like that, what is the pK? Power of K. Power of K means power of the dissociation constant of an acid. So what is the pK? That is minus log Ka. तो जैसे आपने pH निकाला है, बिल्कुल सेम वैसे ही अपन pKa भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज आल्सो द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बात समझ में आ गई ना? सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सपोज एक ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, तो क्वेश्चन लिख. सो टुडे समथिंग वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी विल सॉल्व. आज 3 से 4 सवाल मैं तुम्हें लगवाऊंगा, और वो तीनों 4 टाइप के सवाल एकदम अलग अलग होंगे, जो pH पे ही बेस्ड है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, कुछ फॉर्मूले कुछ नए जानने होंगे. ठीक, चलो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द pH ऑफ. क्वेश्चन ध्यान से समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल ओनली जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट. कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 m, है ना? कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1, सॉरी 0.1 m, 0.1 m, and which sample they have given? Solution of acetic acid. Solution of acetic acid CH3COOH. Calculate the pH of 0.1 m CH3COOH if the degree of, देखो क्या क्वेश्चन दे दिया, if the degree of
dissociation, if the degree of dissociation is, ये दे रखा है, dissociation is 0.0132. This is the question. Okay, this is the question for us कि we have to find out the pH. आपको इस सवाल में क्या निकालना है? आपको इस सवाल में pH फाइंड आउट करना है और क्या क्या गिवन है, कंसंट्रेशन मालूम है 0.1 m और अल्फा मालूम है 0.0132. आया ना नया टाइप का सवाल, है ना? एकदम नए तरीके का सवाल सामने आ गया ना, क्योंकि कल तक के लेक्चर में अगर आप अपने 2 लेक्चर को देखो तो उन दोनों लेक्चर पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं सीखा. So is the statement of the question okay to everybody? Don't worry, I will teach you that how you have to solve it. First of all, you please give me the answer. Is the statement of the question okay to everybody? Statement में तो प्रॉब्लम नहीं आया. एक एक स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसान होगा. Is the statement okay to everybody? Now we are going to solve. कैसे सॉल्व करेंगे देखो. Okay. So which sample they have given us? Okay, very good. So the students are saying okay, it means the statement is okay. चलो कोई बात नहीं, very good, बहुत बढ़िया. ठीक. Now, so which sample they have given you? They have given CH3COOH. ये एसिड मालूम है. अब एक्वस मीडियम में अगर आप बात करोगे, इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? You will get CH3COO minus and H plus. मिलेगा? है ना? एक्वस मीडियम में ऐसे ही हमारा एसिड डिसोसिएट करता है ना कोई भी एसिड. देखो अभी क्या होगा, अगर आप याद करो मैंने एक तरीका बताया था कि अगर ये एट इनिशियल, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड? जस्ट सी द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव मी द आंसर. What is the concentration, initial concentration of the acetic acid? Anyone of you क्वेश्चन ध्यान से देखो और मुझे बताओ, एसिटिक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिख रहा है? Are you able to read it? Can you see it? So anybody can text what is the initial concentration? Yes, very good. So Tanvi, Prakhar, Anam, Nidhi, Ashutosh, they gave me the right answer. तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.1. मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1 m. दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक. तो मालूम मैंने बोला एक तरीका बताता हूं, फॉर्मर के लिए एक तरीका याद रखो हमेशा के लिए. अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन C था तो ये पहले 0 बनते है ना. फिर आप क्या बोलते हो आफ्टर डिसोसिएशन? जब डिसोसिएशन हो जाता है तो क्या बनता है कंसंट्रेशन? ये बनता है C माइनस C अल्फा, ये बनता था C अल्फा और ये बनता था C. ठीक है. At initial, this is the way. If you remember that, my dear, when we people were discussing to find out the Ka and the Kb, at that time this formula we discussed. ठीक. If the initial concentration is a C, so that will be the 0 and whenever the dissociation will start, तो C alpha यहाँ बचेगा तो ये C minus C alpha होगा. And now you know very well what is the concentration of H plus ion? That is C alpha. क्योंकि आपको पता है pH निकालना है और pH अगर निकालना है तो pH के फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस लॉग H plus ion concentration. तो H plus ion का concentration कितना है? C alpha. अब देखो what is the value of C? 0.1. What is the value of alpha? It's 0.0132. है ना? 0.0132. So what is the C alpha? मतलब पूरा का पूरा हमारा H plus अगर हमें निकालना हो तो यहाँ से काम करते हैं, थोड़ा डेसिमल हटा देंगे तो 10 to the power 3 है 1.32 into 10 to the power minus 3 और अगर डेसिमल हटा दें तो 132 into 10 to the power minus 5. This is the concentration of H plus ion. This is the concentration of H plus ion. And now I think everybody can solve the question very easily. अब तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा because you know the formula of the pH. तो फॉर्मूला पता ही है. So what, how will you find out? You will just put the value of H plus ion. So that will pH is equal to minus log 132 into 10 to the power minus 5. Can you find out the answer?
Any one of you can solve it? Please text me. What will be the pH? Any one of you please solve it and find me what is the answer of this particular question. Log table already you people are having. Log table 2-3 टर्म पहले मैं आपको भेज चुका हूं. तो अब आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना होगा. What will be the answer of this question? Anybody can find? Try to solve it. Just use the log table and find it. I'm just waiting for your answer. Please don't waste time. क्योंकि अभी और भी 2-3 टाइप के सवाल लगाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी द लॉग टेबल. केवल लॉग टेबल ही तो देखना है. चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूं. दैट इज माइनस लॉग ए मतलब 132 प्लस लॉग बी टेन टू द पावर -5. तो माइनस लॉग 132 देखो तो 25 हो गया 2 और 13 का अगर 2 देखोगे तो कितना है लॉग टेबल भाई? मुझे भी देखना पड़ेगा. 13 का 2 that is 1206. okay, so it's 2.1206 और ये हो जाएगा -5. तो 5 minus 2.1206. what is the answer? okay, no that is wrong my dear. बहुत ज्यादा आ रहा है आंसर. इससे माइनस करो ना 5 से. 5 से अगर माइनस करोगे तो ये हो गया 2.1206. 49782 2.87. दैट इज 2.87. अप्रोक्सीमेट 2.88 मान सकते हैं. अप्रोक्सीमेट 2.88 हो जाएगा. यस, वेरी गुड, शाबाश. सो आशुतोष, मयूर, रिया एंड कल्याणी they got the right answer. Prakhar also got the right answer. Very good, Prakhar. Tanvi, you please check it once. Tanvi, you please check your answer. I hope your calculation part, there is some confusion in the calculation part. Okay, very good. Bhushan also got the right answer and Anam also got the right answer. Tanvi, you please delete your answer and check it once and just text me again. So that is the answer, 2.8. Okay, so is it okay to everybody? Is this type of the question okay to everybody? Text me please. Okay, good, Sabash. Okay, and what about other students? Yes, good, Sabash. बेटा रिप्लाई करने में संकोच मत किया करो, है ना. जब मैं पूछता हूं ना कि इज इट ओके और एनी डाउट, तो आई जस्ट वांट, एक टीचर होने के नाते मुझे क्या लगता है, मुझे हर बच्चे से रिप्लाई मिले, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना. चलो ओके. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दिस इज योर लाइव चैट ऑफ दिस लास्ट लाइव चैट ऑफ द ईयर 2020. तो प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज इट, है ना. अब 2020 में ही आएगा, सब कुछ 21 में ही होगा. चलो, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया वेयर दे विल गिव द find out the degree of dissociation, they can give the concentration, they can find the pH. So this is also one of the question here we can find the pH, है ना. जो C alpha square from 1 minus alpha से हुआ. So when you will apply this question, then the dissociation will be there. जहाँ पे dissociation होगा तो वहां पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो ये तरीका सामने निकल के आ गया. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और अपन निकालते हैं, है ना. क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया. एंड व्हाट द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन? The second type of the question is calculate pH of किसका pH निकालना है? 0.1 m hypochlorous acid, है ना. 0.15 hypochlorous acid. घबराओ नहीं, फॉर्मूला होता है HOCl. HCl हाइड्रोक्लोरिक है और HOCl हाइपोक्लोरस है. ठीक है, HOCl
और इसके लिए Ka दे रखा है इसमें, and for this they have given the Ka 9.6 into 10 to the power minus 7. They have given the Ka. So the value of the Ka is given to us. Now we have to find. So anybody can text in this particular question what they have given. सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि जैसे ही कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले ये चेक करो कि वैल्यू क्या क्या मालूम है. C मालूम है और Ka मालूम है. This time the concentration we know very well 0.15 m and Ka we know that is 9.6 into 10 to the power minus 7. Okay. Anybody can text what is the formula of the pH. यहां पे pH का फॉर्मूला हुआ माइनस log H plus ion. So what is the formula of H plus ion? For the such type of the question, which formula you will apply to find the H plus ion concentration? Just before 1 minute we solve that type of the question. What is the concentration of H plus ion? कैसे निकालते हो? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था. ये H plus ion concentration अगर निकालना है तो कैसे निकालते हो? What is the formula? अगर वो आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन निकाल लोगे. What is the formula? What is the formula of the H plus ion concentration? Yes, very good Nidhi. बहुत बढ़िया, शाबाश निधि. So the concentration of the H plus ion is C alpha. है ना? It is the C alpha. Yes, very good. So निधि, कल्याणी, सानिका, भूषण, अनम, तन्वी, शीमन, मयूर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आज फिर से कुछ बच्चों ने संकोच कर दिया. Okay, Mayur and Prakar also gave me the answer. Very nice. I think today Vineet Vitonde is not with us. Vineet is not with us. Arya Singh is not with us. आज फिर कुछ बच्चे नहीं है अपने साथ. सेजल वैद, ऋषुराज, हर्ष रेड्डी तो फिर काफी क्लासेस से नहीं है ना. चलो कोई नहीं. Because the strength of the class 11 science is 28 and I hope today only 17 to 18 students are there. चलो कोई नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए. So which acid we are having? Hypochlorous, HOCl. अब जब इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? You will form ClO minus and H plus because it is the acid. Because it is the acid. तो अगर ये C है, ये 0 है, तो जब डिसोसिएशन होगा तो ये C minus C alpha होगा, ये C alpha होगा और ये C alpha होगा. ठीक है ना? So what is the concentration of H plus ion? C alpha. ये देखो, ये C alpha हो गया. And what they have given? They have given the K. So first of all, anybody can take for solving this question. What we require? We have to find the value of which. किसका वैल्यू निकालना होगा? क्वेश्चन को देखो, फॉर्मूले देखो, फिर मुझे बताओ. To solve this particular question, what we are missing? What we have to find? इस पूरे फॉर्मूले में कोई एक चीज नहीं गिवन है. What they have not given us and what we have to find it firstly. Yes, very good, शाबाश. So कल्याणी, तन्वी, निधि, अनम, मयूर, भूषण, they got the right answer. बिल्कुल से हमें अल्फा निकालना होगा, है ना. इस सवाल में मैं अल्फा नहीं बना, है ना. अल्फा की वैल्यू नहीं पता. अगर कैसे भी हमें अल्फा पता चल जाए, है ना, अल्फा अगर पता चल, गुड स्नेहा, आशुतोष, रिया एंड प्रतीक, अगर हमें अल्फा पता चल जाए तो फिर हम सी अल्फा निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा. वेरी गुड प्रीति, बहुत बढ़िया. Preeti is also taking the class. Very good, Preeti. And I think Bhagwati is not with us. I just received the good morning only from Preeti. But sorry, that Bhagwati Giretkar. But I think she is not taking the class. Okay. So what is the formula we are having? Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक. अब आपको पता है कि अल्फा वैसे भी कम है. देखो ना कितना कम कंसंट्रेशन है, 0.15. अब 0.15 में भी डिसोसिएट होगा तो बहुत कम कंसंट्रेशन आएगा. तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 1 माइनस अल्फा कैन अप्रोक्सीमेट टेकन एज 1. इसको 1 मान सकते हो क्योंकि अल्फा इज वेरी लेस. इसका रीजन क्या है? बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस. अल्फा कम होगा. ठीक. तो उसके साथ फॉर्मूला क्या बन गया? Ka is equal to C alpha square. And what is the K? It is 9.6 into 10 to the power minus 7. What is the concentration? 0.15 and alpha square. Can anybody find what is the alpha? So alpha square is equal to 9.6 into 10 to the power minus 7 upon 0.15. So here we can find the alpha. अब यहां से अल्फा निकलेगा
स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़े, यहाँ 1 बढ़ा, मतलब 10, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 15. Anybody can solve it? Anybody can text what is the answer? What will be the alpha? Arya saying, चलो बताओ भाई, आज तुमने कोई भी आंसर नहीं दिया है. What is the value of alpha over here? What will be the value of alpha? And then we can find that pH. अल्फा स्क्वायर रूट से निकालना पड़ेगा. देखो ये तो तय है कि 10 टू पावर -6 है, तो ये 10 टू पावर -3 बाहर आ जाएगा. अब इतने का स्क्वायर रूट देख लो भाई, 96 अपॉन 15 का. पहले 96 और 15 का स्क्वायर रूट देखो, फिर डिवाइड करो. So what is the alpha? What will be the alpha over there? That is the big question. Tanvi, have you got it? What is the value of alpha, or anyone of the student? क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन टफ है तो टाइम लगेगा. पहले तो 96 का स्क्वायर रूट देखो. Have everyone got? अब ये 10 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 100 हुआ, मतलब 981 हुआ. ये 9.5 समथिंग कुछ बनेगा, और ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा. एंड देन वी कैन फाइंड द पीएच. फिर अगर ये अल्फा निकल आएगा, रूट 96 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना. एंड देन वी कैन फाइंड द पीएच, दैट इज सी अल्फा. तो सी अपने को पता है, माइनस लॉग H प्लस आयन. H प्लस मतलब सी अल्फा हो गया, तो माइनस लॉग सी अल्फा, तो दैट इज माइनस लॉग सी कितना है, 0.15 इंटू, ओके. सो अल्फा दे हैव गॉट, ओके, 0. means approximate we can calculate. Okay, understood. It means that approximate you can find 2.5 into 10 to the power -3. Is it okay? I hope so. It means approximate we can find it 2.5 into 10 to the power -3. है ना? 9. Yeah. So then how we have to find the pH? pH is equal to minus log C alpha. So that is minus log C कितना है, 0.15, अल्फा हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 15 5 का 75 30 37 0.375 इंटू 10 टू द पावर -3. अब यहां से अगर आप डेसिमल हटा दोगे तो माइनस लॉग 375 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका लॉग लेना पड़ेगा. 375 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड देन वी कैन फाइंड द पीएच. अब यहां से लॉग टेबल देख लो. लॉग टेबल अगर देखोगे, सो पीएच इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो माइनस ऐसा ही रहा, दैट इज लॉग 375, ये -6 बचेगा. अब अगर 375 का लॉग देखोगे तो मैग्नीसा हो गया 2, और 37 का 5 देखना होगा. 37 का अगर आप 5 देखते हो तो ये होगा, आई एम ऑल्सो हैविंग द लॉग टेबल, 5740, 2.5740 minus 6. It means that 6 minus 2.5740.
अब जो भी आ जाए इसको माइनस कर लो, तो 6.000 and that is 2.5740. 6, 2, 4 and then 3. Is it okay? Yeah. So 3.426. 3.426. That is the pH. So pH will be 3.426. pH will come 3.426. Is it okay to everybody? Did you got it? You can also check your answer. So have everyone got that same answer? 3.426. Yes, very good, Mayur. Sabash. So Mayur also got the answer. So pH of the sample will be 3.426. Okay, good. Sabash. Very nice. So that is the pH of that particular sample. है ना? तो देखो ये भी एक टाइप का सवाल निकाल लिया कि अगर कोई एसिड है और वो डिसोसिएट होगा तो या तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिहाफ पर पहले हमें पीएच निकालना होगा, या अल्फा पहले निकालना होगा फिर उसके हिसाब से पीएच निकालना होगा, या फिर के फाइंड आउट करना होगा. सो दैट इज आल्सो द वन. बट यू नो व्हेन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, when you will use this technique, which type of the question, whenever the dissociation will be given to you. अभी तक आप जो भी pH का सवाल लगा रहे थे वहां केवल concentration given था, only initial concentration was given in that question. But now which type of the question we are solving, where dissociation occur, जहां dissociation हो गया कैसे आपको पता चल जाएगा, या तो अल्फा पता होगा या Ka दिया होगा या concentration initial दे दिया होगा. So based on that we are able to find out the question. ठीक है भाई? Both the questions are okay to everybody? Please text me. Both type of the questions are okay? आगे बढ़े. Okay, very good. Now, so the next type of the question, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. The next question is very much important. बहुत मजेदार सवाल है वो. क्या करना होगा देखो. Now we are going to solve the such type of the question where the mixing of the chemical. मैंने आपको क्या किया, दो केमिकल मिक्स कर दिए, है ना? अब दो केमिकल अगर मिक्स कर दिए तो रिजल्टेंट पीएच कैसे होगा, दैट इज आल्सो द वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस. हालांकि ये टॉपिक अभी कल के लेक्चर में भी कंटिन्यू चलेगा, बट फिर भी मैं आज कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूं. पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, है ना? पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब समझे आप? रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब जहां पर आप 1 2 3 3 केमिकल आपस में मिक्स कर दे रहे हो, मतलब मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स. मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, जहां पर आपने केमिकल्स को मिक्स कर रखा है. अगर आपने केमिकल को मिक्स कर दिया देन हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ठीक, जैसा क्वेश्चन आया, सपोज पहला क्वेश्चन आया, कैलकुलेट pH of, है ना? pH हमें निकालना है. कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन. कोई एक सॉल्यूशन तैयार किया हम लोगों ने. pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by ठीक, किसको किसको मिक्स कर दिया, obtained by mixing equal volume of दो सेम वॉल्यूम ले लिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस having pH is equal to 3 and pH is equal to 6. ये सवाल है. pH is equal to 3 and pH is equal to 5 दिया, सॉरी 6 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल होगा. pH is equal to 3 and pH is equal to 5. Now suppose these two chemical we took and now we are going to mixing, है ना? अब आपने क्या किया, मिक्स कर दिया. तो जब आप मिक्स कर दोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा, नाउ दैट पार्ट वी हैव टू फाइंड. नाउ माय डियर, हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. अब ये तो हमारे पास सैंपल है, एक सैंपल का पीएच 3 है, एक सैंपल का पीएच 5 है ना? मींस फर्स्ट सॉल्यूशन पीएच इज इक्वल टू 3, second solution pH is equal to 5. First of all, you please tell me both type of which type of chemical? Both the chemicals are which type? First of all, see the pH. See the pH. This is the JEE question. ये पूरी तरह से बेटा JEE का सवाल है. It's JEE or the NEET question.
ये जेई और नीट का सवाल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन का क्वेश्चन सीख रहे हो, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल दीज आर, इसका मतलब ये दोनों केमिकल कैसे हो गए, एसिडिक हो गए, ये एसिडिक हो गए, वेरी गुड, शाबाश। सो ऑल द स्टूडेंट्स गिव मी द राइट आंसर, दे आर द एसिडिक इन द नेचर। अब ये अगर एसिडिक हो गए तो इसका मतलब यहां पर H प्लस आयन होगा, तो इफ द pH is equal to 3 then what is the H plus ion, that is 10 to the power -3। अगर pH हमारे पास 5 है तो यहां पर H प्लस आयन कितना होगा, 10 to the power -5। ठीक, प्लीज रिमेंबर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द H प्लस आयन, 10 to the power -pH, याद रखना, बहुत मजेदार सी चीज है। By this formula we can also find the H plus. H plus ion is equal to 10 to the power minus pH. तो एक का pH 3 है, एक का pH 5 है, तो what is the H plus ion, 10 to the power -3 and 10 to the power -5। ठीक, अब आपने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम का मतलब दो पार्ट हो गए, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि अगर 200 ml है तो एक सोल्यूशन का भी 200 ml हो गया, दूसरे सोल्यूशन का भी 200 ml हो गया। ठीक, तो जब फाइनल सोल्यूशन हम निकालते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। फाइनल सोल्यूशन निकालने के लिए जब आप pH फाइंड आउट करोगे, सो हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट ट्राई टू फाइंड द कंसंट्रेशन, मतलब पहले आप क्या लिख सकते हो, ऑन मिक्सिंग फाइनल H प्लस आयन, फाइनल H प्लस आयन कितने होंगे, तो जो फाइनल H प्लस आयन होंगे वो होंगे 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -5 अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों किया, ये समझ में आ रहा है ना, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, व्हाई आई जस्ट रोट द अपॉन 2, ये समझ में आ रहा है अपॉन 2 क्यों हुआ है, क्योंकि 2H प्लस आयन हो गए, बात समझ में आ रही है ना। हमारे पास टोटल H प्लस आयन कितने हैं, दो सोल्यूशन जोड़े आपने, एक सोल्यूशन ये जोड़ा, एक सोल्यूशन ये, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, तो इसका मतलब दो बार जोड़ा है ना, तो H प्लस करोगे तो वो अपॉन 2 चला गया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, ये पार्ट बहुत जरूरी है समझना कि व्हाई आई जस्ट रोट द अपॉन 2, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, बहुत ध्यान से समझो, और अगर डाउट है तो मुझे टेक्स्ट करो। देखो मैं यहां पर एक कोशिश और करता हूं, देखो मैंने आपसे बोला कि सपोज ये कंटेनर था, है ना, इस कंटेनर पे 10 टू द पावर -3 m HCl, ठीक है ना, और कितना है, सपोज मैंने बोला 200 ml, सपोज ये 200 ml, ठीक। फिर मैंने आपसे बोला कि ये कोई एक केमिकल है और सपोज ये 10 टू द पावर -5 m HCl है और ये भी 200 ml है, ये भी दो, क्योंकि आपने क्या लिखा, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम का मतलब आपने दोनों को उठा के जोड़ दिया, तो अगर आपने जोड़ दिया तो टोटल आयन कितने आएंगे, दिस प्लस दिस, तो दो बार हो गया ना, मतलब जो आप टोटल निकालोगे वो 2H प्लस आयन है, 2H प्लस आयन, एक का 10 पावर -3, एक का 10 पावर -5, तो यहां से अगर H प्लस आयन निकालोगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर -3 10 पावर -5 अपॉन, दैट्स व्हाई आई रोट द 2 अपॉन। ओके, गुड, शाबाश, स्टूडेंट्स आर राइटिंग, दे गॉट इट, वेरी गुड। तो अब यहां पे जब ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, so now how many total H plus ion concentration anybody can find, ये IIT JEE का सवाल है बेटा, this is the question of the JEE mains, ये JEE mains 2017 या 18 का क्वेश्चन है, नॉट श्योर, आप देख सकते हो, बट JEE mains का सवाल है ये 100%। so what is the H plus ion concentration, कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 10 टू द पावर -2 अपॉन 2, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, 10 पावर -2 का मतलब 1 अपॉन 100 हो गया, इसका मतलब 1 अपॉन 2 है तो 0.5, है ना, और इनटू, यह काम करता है 10 पावर -3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 100, है ना, यही होगा ना, 1 प्लस 1 अपॉन 100, इसका मतलब अपॉन 2 ये चल ही रहा है, तो 10 टू द पावर -3 1 प्लस 0.01 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2। अब ये 2 का अगर हम डिवाइड कर दें यहां से तो ये बनेगा, ये दो जीरो आ गए, 101 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मतलब क्या हो गया, 101 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -5,
minus 5. So 2 5 are 10, 50.5 into 10 to the power minus 5. तो ये हो जाएगा 505 into 10 to the power minus 6. So how many total H plus ion came? H plus ion came 505 into 10 to the power minus 6. Now can you find out the pH? Can anybody find the pH right now? अब इसका pH निकाल सकते हो क्या? अगर निकाल सकते हो तो बताओ क्या आंसर आएगा? तो pH कितना हो गया? माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 505 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना? तो माइनस ऐसे ही बना रहा है, ये हो गया log 505 माइनस 6. अब इसका अगर लॉग टेबल देखोगे तो मैंटिसा हो जाएगा 2 और 50 का 5. 50 का 5 अगर फाइंड करोगे, लॉग टेबल देखना पड़ेगा. 50 का 5, जस्ट अ मिनट. 50 का 5 अगर हम देख रहे हैं तो 7033, ये हो जाएगा 2.7033 माइनस 6, मतलब 6 माइनस 2.7033. अब इसको माइनस कर लो भाई, तो 6000 और ये हो जाएगा 2.7033. 7 6 9 2 then 2. So sorry, 3. So 3.29. So pH will come 3.29 approximate इतना मान लो 3. तब देखो दोनों को ऐड कर दिया ना तो pH कितना आ गया? 3.29. Yes, very good. शाबाश. So Kalyani, Tanvi and Prakhar got the right answer. Very nice. So the pH is 3.29. Okay, very good. बहुत बढ़िया. तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करो, दोनों H प्लस आयन को जोड़ दो, क्योंकि आप टोटल कितने बन जाएंगे? 2H प्लस आयन, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो. वेरी गुड स्नेहा, शाबाश. तो कल्याणी, तन्वी, प्रखर, आशुतोष एंड स्नेहा गॉट द राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. ओके, okay. So that's all for today, my dear. Thank you so much. I hope today you enjoyed a very good question because the question was very good. आज के जो क्वेश्चन थे ये बिल्कुल कंपटीशन बेस्ड आपने स्टडी करी. So tomorrow when we will meet, अब अगले साल मिलेंगे, और अगले साल जब मिलेंगे तो और बेहतर क्वेश्चन करेंगे, और I hope only 1 or 2 lecture are required. So in this entire week your equilibrium chapter will finish. बिकॉज अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत कुछ कम कर दिया गया. पहले बहुत कुछ था, शॉर्ट हाइड्रोलिसिस था जो अब खत्म हो गया है. तो मेनली आपका ये पीएच वाला ही पार्ट है जो आई होप कल या परसों में खत्म हो जाएगा. तो डेफिनेटली द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द सेकंड बुक, है ना? तो नेक्स्ट वैसे कोशिश तो मैंने करी थी कि 1 तारीख से ही सेकंड बुक चालू कर दूं, बट थोड़ा पीएच में टाइम लग रहा है. बट डोंट वरी, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है. और उससे भी कमाल की बात ये है कि आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, तो लाइव क्लास में क्या इन टॉपिकों पे टाइम लग रहा है. ठीक है ना? आई होप दैट एट होम यू पीपल आर आल्सो डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ओके, so thank you so much dear. Goodbye, take care and wish you a happy new year. ठीक, God bless you. ईश्वर आपकी पूरी मदद करे और आप जो जो सोच के बैठे हो वो आपके पूरे हो, ये पूरा पूरा आशीर्वाद है. और God bless you, thank you, and you people are really tremendous. I have got a very good batch and I wish that in the coming 2020-21 you people will rock. Okay, thank you so much dear. Goodbye, take care.